یہ اس وقت کی بات ہے جب بادشاہوں کے دور حکومت ہوا کرتے تھے اور اس وقت بھی کہانیاں جنم لیتی تھیں، محبت کی داستانیں ہوا کرتی تھیں۔ بس اسی زمانے میں ایک سمجھدار دانشور بادشاہ کی حکومت تھی۔ بادشاہ بہرام کی ایک ہی بیٹی تھی۔ شہزادی ماپارا کو بادشاہ نے علوم و فنون سکھائے، شہزادوں کی طرح اس کی تربیت کی اور شہزادیوں کی طرح شرم و حیا کا درس دیا۔ غرض یہ کہ شہزادی کی تربیت پہ بادشاہ مطمئن تھا۔ بادشاہ نے گھنے جنگل جانے کا پروگرام بنا لیا، جس کے بارے میں بادشاہ بہرام نے سنا تھا کہ اس گھنے جنگل میں کوئی ایسا شیر بھی رہتا ہے جو دوسرے جانوروں سے مختلف ہے، اور وہ شیر کسی پہ حملہ نہیں کرتا، انوکھا شیر ہے، لیکن اس کی دہاڑ کی گونج لوگوں نے دور دور تک سنی ہے۔ اور جب بادشاہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ گھنے جنگل میں داخل ہوا تو اس نے دیکھا کہ جنگل تا حد نظر بے حد گھنا ہے۔ شکار کی تلاش میں یہ لوگ آگے بڑھے کہ اچانک بادشاہ کی نظر ایک نہایت خوبصورت ہرن پہ پڑی۔ بادشاہ نے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور ہرن کے پیچھے گھوڑا دوڑا دیا۔ ہرن بھی انتہائی پھرتیلا تھا، ایک دم قلانچے بھرتا ہوا تیزی سے آگے ہی آگے دوڑا جا رہا تھا۔ وہ اس پھرتیلے ہرن کے پیچھے اپنے گھوڑے پہ بیٹھا اس تک پہنچنا چاہ رہا تھا کہ ہرن اچانک کسی جھاڑی میں غائب ہو گیا۔ بادشاہ کے ساتھی کہیں دور پیچھے رہ گئے تھے کہ بادشاہ کو کسی کی درد میں ڈوبی ہوئی آواز سنائی دی، جیسے کوئی جانور ہلکی سی غراہٹ کے ساتھ درد سے کرا رہا ہو۔ بادشاہ گھوڑے سے اترا، ادھر ادھر پتوں کو ہٹاتے ہوئے چند قدم ہی چلا کہ اسے بکھرے پتوں کے ساتھ گیلی زمین پہ ایک نڈھال شیر دکھائی دیا، جس کے جسم پہ جگہ جگہ زخم تھے اور ایک پنجہ بھی لہولہان تھا۔ شیر کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ بادشاہ کو لگا کہ یہ پالتو شیر ہے، لیکن پھر اس کے ذہن میں ایک سوال ابھرا، اگر یہ پالتو شیر تھا تو پھر جنگل میں کیسے پہنچا؟ بادشاہ نے اپنا دواؤں اور مرہم پٹی والا تھیلا اٹھایا، جلدی جلدی شیر کے زخموں کی مرہم پٹی کی، پیار سے اسے سہلایا۔ شیر نے تشکر آمیز نظروں سے بادشاہ بہرام کو دیکھا کہ اتنے میں بادشاہ کے ساتھی بھی وہاں پہنچ گئے اور شیر کو دیکھ کے ٹھٹک گئے۔ اس شیر سے ڈرو نہیں، یہ ہمارا دشمن نہیں ہے۔ اب بادشاہ کے کہنے پہ سب نے واپسی کی تیاری پکڑی۔ بادشاہ نے محل پہنچتے ہی حکیم بلوائے اور شیر کے علاج کے لیے ان سے کہا۔ حکماں ڈرے ہوئے تھے۔ بادشاہ نے سب کو تسلی دی کہ ڈرو نہیں، یہ درندہ شیر نہیں بلکہ پالتو شیر ہے، تمہیں نقصان نہیں پہنچائے گا۔ اور یوں شیر کا علاج شروع ہوا، اور کچھ دنوں بعد جب شیر تندرست ہو گیا تو محل میں سبھی لوگ اسے دیکھ کے حیران رہ گئے۔ نکھرا نکھرا شیر اور اس کے جسم پہ سنہری نرم و ملائم چمکدار بال۔ شہزادی ماپارا تو شیر کو دیکھتے ہی خوشی سے بے قابو ہوئی جا رہی تھی، بار بار اس کے ریشمی بالوں پہ ہاتھ پھیرتی، کبھی اس کی پیٹھ سہلاتی۔ شیر بھی آنکھیں بند کر کے پرسکون بیٹھا تھا، جیسے شہزادی کا ساتھ اسے اچھا لگ رہا ہو۔ اب تو شہزادی کا روز کا معمول بن گیا، وہ زیادہ تر شیر کے ساتھ ہی بیٹھی اپنا وقت گزارتی تھی۔ ملکہ نے یہ سب دیکھ کے بادشاہ سے کہا، اب تو ماپارا نے اپنی سہیلیوں کے ساتھ بیٹھنا بھی چھوڑ دیا ہے، بس ہر لمحہ شیر کے ساتھ ہی نظر آتی ہے۔ بادشاہ نے مسکراتے ہوئے کہا، کیوں نہ ہم یہ شیر اسے تحفے میں دے دیں؟ ہاں، یہ ٹھیک رہے گا۔ شہزادی نے شیر کے رہنے کے لیے، اٹھنے بیٹھنے کے لیے اور اس کے دور تک ٹہلنے کے لیے پچھلے باغ کا بڑا حصہ منتخب کیا۔ شہزادی زیادہ تر شیر کے پاس ہی رہتی، اس کی سہیلیاں، اس کی نوکرانیاں، وہ سب بھی وہیں شہزادی کے ساتھ ہی ہوتی۔ شیر بھی شہزادی کے ساتھ ساتھ ہی رہتا۔ وہ شہزادی سے بہت مانوس ہو چکا تھا۔ ایک رات شہزادی بستر پہ لیٹی ہوئی تھی، ایک عجیب سی بے چینی اس کے اندر اتری ہوئی تھی، اسے نیند نہ آ رہی تھی۔ وہ اٹھ کے بالکونی پہ آئی، جہاں سے وہ اکثر راتوں میں شیر کو دیکھا کرتی تھی، جو رات کے پہر ایک جگہ گھمبیر خاموشی کے ساتھ بیٹھا رہتا تھا۔ لیکن یہ کیا، آج وہاں شیر موجود نہیں تھا، بلکہ ایک لمبا چوڑا خوبصورت نوجوان بیٹھا ہوا تھا، اور اس کے ساتھ شہزادی کی خاص ملازمہ کلوٹی بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کے گہرے رنگ کی وجہ سے سب اسے کلوٹی کہتے تھے۔ کلوٹی کے دراز بالوں میں وہ نوجوان اپنی انگلیاں پھیر رہا تھا، اس کے بالوں سے کھیل رہا تھا۔ شہزادی کو تو جیسے زبردست جھٹکا لگا تھا۔ اس نے بے چینی کے ساتھ صبح ہونے کا انتظار کیا اور اگلی صبح کلوٹی کو طلب کر لیا۔ کلوٹی، رات تمہارے ساتھ کون نوجوان بیٹھا تھا اور تم وہاں اس کے ساتھ کیا کر رہی تھیں؟ کلوٹی ڈر سی گئی، پھر بولی، شہزادی صاحبہ، میں آپ سے کچھ نہیں چھپاؤں گی۔ جسے سب شیر سمجھ رہے ہیں وہ دراصل رستم شہزادہ ہے۔ کچھ دشمنوں کی وجہ سے اسے شیر کا روپ دھارنا پڑا۔ یہ عمل اس نے کسی سنیاسی سے سیکھا تھا۔ وہ رات کو انسانی روپ میں آ جاتا ہے۔ ایک رات جب میں شیر کے احاطے کے پاس سے گزر رہی تھی، اس نے مجھے دیکھا
और मेरे बालों पे आशिक हो गया। शहजादी बोली। ये कैसी बेहुदा बात कर रही हो? वो बोली, मैंने कुछ नहीं किया शहजादी साहिबा। वो कहता है कि उसने आज तक इतने लंबे और खूबसूरत बाल नहीं देखे। वो मेरे बालों को खोल देता है और मेरे बालों से खेलता है। शहजादी फौरन बोली, खबरदार जो अब तुम उसके करीब गई, वरना उसी वक्त तुम्हारे बाल काट के फेंक दूंगी। कलूटी डर गई। जी शहजादी साहिबा। वो वहाँ से फौरन चली गई और फिर शहजादी ने शेर की तरफ से बेरुखी अख्तियार कर ली। ना वो उसके पास गई, ना अपने हाथ से उसे कुछ खाने पीने को दिया, ना रात में उसके करीब फटकी। शेर के रूप में शहजादे ने ख़ास तौर से शहजादी की बेरुखी नोट की, जो उसके मिजाज पे बहुत गिरा गुजरी। सुबह हुई, शहजादी ने कलूटी को आवाज़ दी, कलूटी। लेकिन कोई जवाब न मिला। शहजादी ने लगातार कई बार कलूटी को पुकारा, लेकिन ना कलूटी आई ना जवाब आया। बल्कि शहजादी की आवाज़ सुन के 3-4 मुलाजमाएँ शहजादी के आगे गर्दन झुकाए खामोश खड़ी थीं। शहजादी गुस्से से बोली, कलूटी कहाँ है? एक मुलाजमा डरते डरते आगे बढ़ी और बोली, शहजादी साहिबा, कलूटी कहीं दिखाई नहीं दे रही। बाहर के अहाते में दीवार पे जो कुछ लिखा है, आप खुद ही चलकर देख लें तो बेहतर होगा। शहजादी चलकर आई और बाग के पिछले हिस्से में दीवार पे कोयले से लिखे गए हरूफ पे नजर डाली। चंद लम्हे वो बगौर उन हरूफ को देखती रही, जहाँ लिखा था, कौन आएगा रुस्तम के देश, कौन काटेगा कलूटी के गेस। शहजादी ने गुस्से से कांपते हुए अपनी मुट्ठियां भींच लीं। यानी उसके लिखे का वाज़ा मतलब था कि शहजादी महापारा को चैलेंज दिया गया है। शहजादी के हुक्म पे महल का चप्पा चप्पा देख लिया गया। कलूटी और शेर कहीं ना थे, यानी रुस्तम शहजादा कलूटी को अपने देश ले जा चुका था। शहजादी महापारा की बेरुखी ने रुस्तम शहजादे को अंदर से झंझोड़ के रख दिया था और जवाबी कार्रवाई के तौर पर रुस्तम ने एक कदम उठाया कि कलूटी को अपने साथ अपने देश ले गया और शहजादी को एक खुला चैलेंज दे गया, कौन आएगा रुस्तम के देश, कौन काटेगा कलूटी के गेस। शहजादी माँ के पास आई, जो अपनी बेटी की तबीयत और मिजाज से अच्छी तरह वाकिफ थी। उसने माँ से कहा, अम्मा, वो शेर दरअसल एक शहजादा था। वो कलूटी को अपने साथ ले गया और मुझे चुनौती देकर गया है कि कौन आएगा रुस्तम के देश, कौन काटेगा कलूटी के गेस। अम्मा, इसमें सरासर मेरी बेइज्जती है कि मैं बदले में चुप रहूं। मैं रुस्तम के देश जाना चाहती हूँ, मुझे आपकी इजाज़त चाहिए। माँ ने कहा, बेटी, कभी कभी औरत को खामोशी अख्तियार कर लेना चाहिए। वो जंगल जंगल रहने वाला किस होशियारी से अपना काम दिखा गया। तुम्हारे वहाँ जाने में तुम्हारे लिए कोई खतरा ना हो, तुम उसे कहाँ ढूंढती फिरोगी। शहजादी ने होंठ भींचे, बेचैन बेचैन सी माँ के पास खड़ी रही। माँ समझ गई कि शहजादी महापारा ने अपने दिल में जो ठान ली है वो करके रहेगी। माँ ने कहा, बेटी, मैं बस तुमको यही समझाऊंगी कि ऐसे मौक़ों पे सामने वाले से किसी इंसाफ या हमदर्दी की तवक्का रखना हिमाकत है। लेकिन फिर भी तुमने वहाँ जाने की ठान ही ली है, तो जाओ, अपनी मर्जी पूरी कर लो। ये कह के माँ एक ठंडी सांस भर के चुप हो गई। वो शहजादी की जिद्दी तबीयत से अच्छी तरह वाकिफ थी। शहजादी ने माँ को चूमा और लड़कों का भेष बदल के तलवार लेके घोड़े पे बैठी और अनजाने रास्तों पे गामजन हो गई। वो जहाँ से गुजरती एक एक से रुस्तम देश का रास्ता पूछती, लेकिन कोई ना जानता था कि एक अनजाने रास्ते पे पहुँच गई कि इससे घना जंगल उसने आज तक ना देखा था। वो जंगल के रास्ते अंदर ही अंदर चलती गई कि अचानक उसे इस घने जंगल में दरख्तों के पीछे पत्तों में छुपी एक झोंपड़ी दिखाई दी। वो उस तरफ चली आई जहाँ एक उम्र रसीदा बाबा बैठा था। उस शख्स ने शहजादी पे नज़र पड़ते ही कहा, बेटी, ये इस तरह घने जंगल में लड़कों के भेष में क्यों फिर रही हो? वो हैरान हुई। बाबा, आपने मुझे पहचान लिया? वो बोले, बेटी, दिल की आंख से सब नजर आ जाता है। तुम अपनी कहानी बताओ, ये भेष किसकी खातिर बदला है? शहजादी ने शेर के मिलने से और शेर के जाने तक की लफ्ज ब लफ्ज सारी कहानी सन्यासी बाबा को सुना डाली। उन्होंने कहा, बेटी, वो शहजादा बहुत चालाक और होशियार है। मैंने ही उसे शेर के रूप में आने का गुर सिखाया था। मैं तुम्हें रुस्तम देश का रास्ता बताता हूँ। और फिर सन्यासी बाबा ने अपने थैले से एक नक्शा निकाला, उस पे कुछ निशानात लगा के शहजादी को समझाया ताकि वो आसानी से वहाँ पहुँच जाए। शहजादी ने तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा किया और रुस्तम देश की खोज में चल दी। कोसों की मुसाफत तय करने के बाद वो एक अजनबी देश की सरहद में दाखिल हो गई। पूरे शहर में खामोशी का राज था। थोड़ा और आगे बढ़ी तो एक खूबसूरत बाग दिखाई दिया, जहाँ हर तरफ फूल ही फूल थे और हर सू फूलों की भीनी भीनी खुशबू महक रही थी। सामने ही एक शानदार वसी और अरीज महल था।
बाग में एक औरत हाथ में फूलों की टोकरी लिए फूल इकट्ठा कर रही थी। शहजादी ने आगे बढ़ के उससे कहा, अम्मा आप इतनी उम्र में भी ये काम कर रही हैं? वो बोली, सारी उम्र काम कर कर के अब इतनी आदी हो गई हूँ कि फारिग बैठा नहीं जाता। मैं इस महल में काम करती हूँ। हमारा शहजादा रुस्तम पता नहीं किस काली सी लड़की को अपने साथ ले आया। उसके बालों में लगाने के लिए फूल इकट्ठे कर रही हूँ। काली लड़की? शहजादी ने जेरे लब दोहराया। अम्मा लाए मैं फूलों के हार बना दूं। वो औरत हैरानी से बोली, बेटा तू फूलों के हार बनाएगा? वो बोली, हाँ। और देखते ही देखते उसने निफासत से 3-4 हार बना के रख दिए। बेटा तुमने तो इतने सलीके से हार बना दिए जैसे कि ये काम तुम्हें आता हो। शहजादी बोली, अम्मा मुझे काम की तलाश है, महल में मेरे लिए काम की बात करो कि कोई काम मुझे मिल जाए। बड़ी भी बोली, बेटा तेरे जैसे मेहनती लड़के के लिए मैं महल में बात करूंगी कि तुम्हें वहाँ कोई काम मिल जाए। बागीचे के पास ही एक छोटा सा घर था जहाँ बड़ी भी रहती थी। उन्होंने शहजादी को वहाँ छोड़ा और फूलों के हार लेके महल में चली गईं। कलूटी लपक के फूलों की टोकरी के पास आई और खुश होके बोली, अरे ये इतने खूबसूरत हार किसने बनाए हैं? बड़ी भी बेसाख्ता बोली, मेरी भांजी आई हुई है, उसने बना दिए। कलूटी झट बोली, कल से अपनी भांजी को अपने साथ ले आना, मेरे सर में तेल की मालिश कर देगी। बड़ी भी महल के कामों से फारिग होकर जब घर आई तो शहजादी से कहा, बेटा कलूटी को तुम्हारे बनाए हुए हार बहुत पसंद आए। बस मेरे मुंह से निकल गया कि मेरी भांजी आई हुई है, उसने बनाए हैं। अब कलूटी ने कहा है कि कल से अपनी भांजी को ले आना, वो मेरे सर में तेल की मालिश कर देगी। तुम तो लड़के हो, अब मैं क्या करूं? बड़ी भी परेशान थी। शहजादी साथ वाले कमरे में गई, माथे तक दुपट्टा लिया, चेहरे पे नकाब कर ली, आंखों में काजल फैला के लगा लिया। बड़ी भी ये देख के एकदम हंस पड़ी। अरे बेटा अब तो तुम बिल्कुल लड़की लग रहे हो। अब कल इसी हुलिये में मेरे साथ महल चलना, बाकी देखा जाएगा। अगली सुबह शहजादी बड़ी बी के साथ महल के अंदर गई। कलूटी ने उसे देख के कहा, हार तो तुमने बड़े अच्छे बनाए थे, अब चलो मेरे सर में तेल की मालिश कर दो। और कलूटी ने बड़ी बी को महल के दूसरे कामों के लिए अंदर भेज दिया। शहजादी ने कहा, मैं यहीं बैठ के आपके सर के तेल की मालिश कर देती हूँ। कलूटी तो थी ही सदा की नौकरानी, वहीं फर्श पे बैठ गई। शहजादी ने चुपके से अपने थैले से तेल की बोतल निकाली जो वो सन्यासी बाबा से लेके आई थी और कलूटी के सर में तेल की मालिश शुरू कर दी। अब कलूटी अपनी जिद, अपनी साजिशें भूल कर नींद की आगोश में चली गई। शहजादी महापारा ने फौरन ही जल्दी से थैले में से कैंची निकाली और कलूटी के बाल काटना शुरू कर दिए। उसके सर पे मौजूद बाल भी जगह जगह से बुरी तरह से कतर दिए। अब शहजादी के दिल में एक सुकून सा उतर आया। उसने सामने ही दीवार पे काजल से बड़े बड़े हरूफ में लिखा, हम आए रुस्तम के देश, हमने काटे कलूटी के गेस। और फिर शहजादी जल्दी से बड़ी बी के घर गई, अपने कपड़े तब्दील किए और दोबारा लड़कों वाले भेस में आ गई। झट घोड़े पर सवार होकर अपनी तलवार लेके वापसी के लिए घोड़ा दौड़ा दिया। इधर शाम में शहजादा धीमे कदमों से चलता हुआ उस कमरे में आया जहाँ कलूटी शहजादे के इंतजार में बैठी होती थी। सामने कलूटी अपने सर पे दुपट्टा लिए मौजूद थी। शहजादे को कुछ अजीब सा एहसास हो रहा था, जैसे कोई अनहोनी। कलूटी रोज की तरह आज भी मुस्कुराई, लेकिन आज उसकी मुस्कुराहट मध्यम थी, आंखों में एक डर था। शहजादे ने चिढ़ के कहा, सर से दुपट्टा हटाओ। कलूटी ने डरते डरते सर से दुपट्टा हटाया। अब उसके सर पे जगह जगह कतरे हुए बाल थे। शहजादे को जैसे झटका लगा, वो चीखा, तुम्हारे बाल कहाँ हैं? वो बोली, मुझे खुद भी नहीं पता कि सब कैसे हुआ। शहजादा लपक के वापस कमरे की तरफ गया जहाँ कलूटी अपने बाल बंधवाती थी, जहाँ मुख्तलिफ तरह की तेल की बोतलें रखी हुई थी, कंघा रखा हुआ था, आईने लगे हुए थे। शहजादे का माथा ठनका। वो लपक के सामने बनी दीवार के पास गया जहाँ बड़े बड़े हरूफ में लिखा था, हम आए रुस्तम के देश, हमने काटे कलूटी के गेस। महापारा। शहजादे ने जेरे लब दांत भींचे। फिर शहजादा कलूटी के पास आया और उसे झंझोड़ के गुस्से से बोला, यहाँ शहजादी महापारा आई थी, वो तेरे बाल काट के ले गई और तुझे खबर भी ना हुई। उसने गुस्से से कलूटी के मुंह पे एक जन्नाटेदार थप्पड़ लगा दिया। मुझे तुझसे मोहब्बत नहीं थी, न तेरी आंखों से न तेरी अदाओं से। मुझे सिर्फ तेरे बाल अच्छे लगते थे। अब वो ही ना रहे तो तू मेरे किस काम की? अभी इसी वक्त मेरे महल से निकल जा। और कलूटी दम्बा खुद थी कि जो उसकी इतनी ज़्यादा तारीफें करता था वो आज उसे इतना बेइज्जत कर रहा था। इधर शहजादी अपने महल पहुंच चुकी थी। अब उसके अंदर एक इत्मीनान सा उतरा हुआ था कि शहजादा उसके महल की कनीज को बगैर बताए लेके चला गया था। शहजादी को चैलेंज भी दे गया था, लेकिन महल में खामोशी से छाई हुई थी, जैसे इस महल के बासियों को इस बात का इंतज़ार हो कि शहजादा जवाबी तौर पे कोई पेशरफ्त करेगा।
शहजादी की माँ को भी चुप लगी हुई थी। तकरीबन 2 हफ्ते गुजर गए थे कि अचानक एक रोज नक्कारे की चोट पे ऐलान किया गया, रुस्तम देश से वजीर खास आया है। शहजादी बालकोनी के पास आई। उसने देखा एक शख्स, उसके साथ 6-7 सिपाही जिनकी कमर के पीछे तलवारें लटक रही थीं, बादशाह के दरबार में दाखिल हुए। शहजादी दम बखुद सारा मंजर देख रही थी। वजीर ने बादशाह बहराम से कहना शुरू किया, बादशाह सलामत, मैं रुस्तम देश से आया हूँ। जिस शेर को आपने बड़ी इज्जत और प्यार से अपने पास रखा था, वो दरअसल हमारे मुल्क का शहजादा रुस्तम है। वो आपकी रियासत में आपके साथ रहा, लेकिन उसकी एक बड़ी गलती थी कि वो बिना कुछ कहे सुने बगैर किसी को बताए आपके महल की एक कनीज को अपने साथ ले गया था। लेकिन आपकी शहजादी ने हमारी रियासत में आकर जो कुछ किया, उसने हमें ये सोचने पे मजबूर कर दिया कि हम अपनी गलतियों को सुधारें। शहजादी ने वहां पहुंचकर जो कुछ किया, इस तरह उसने शहजादे को एक सबक सिखा दिया, शहजादे के गुरूर को तोड़ डाला। हमारा शहजादा अपनी हरकत पे, अपने किए पे बहुत शर्मिंदा है और आपसे माफ़ी की गर्ज से हमारे साथ आएगा। अगर आपकी इजाज़त हो तो हम अपने शहजादी के लिए शहजादी मापारा का रिश्ता मांगते हैं। इसके लिए आपकी इजाज़त दरकार है। बादशाह मुस्कुराया। बादशाह ने कहा, इस बात का फैसला हमारी शहजादी मापारा ही करेगी। अब सबकी नजरें शहजादी मापारा पे थीं। शहजादी बोली, उस शहजादे को पहले यहाँ लेकर आओ जो हमारी कनीज को बिला इजाजत उठा के ले गया था और जाते जाते हमारी महल की दीवार पे लिख गया था, कौन आएगा रुस्तम के देश, कौन काटेगा कलूटी के गेस। वो हमारी रियासत को चुनौती दे के गया था। सिर्फ लफ्जों के जरिए उसकी माफी काबिल कबूल नहीं होगी, उसे अपने अमल से साबित करना होगी। वजीर ने बादब कहा, जी शहजादी साहिबा, मैं अपनी रियासत जाके वहाँ के बादशाह सलामत को और शहजादे रुस्तम को आपका पैगाम पहुँचा दूंगा। वजीर रुस्तम देश पहुंचा तो शहजादे रुस्तम के सामने ही बादशाह को सारा सच बता दिया कि शहजादा रुस्तम किस तरह बादशाह बहराम के महल में पहुंचा, फिर शेर के रूप में शहजादी से अपनी दोस्ती बनाए रखी, किस तरह शहजादी को शहजादे पे शक हुआ और किस तरह शहजादा उन्हें बगैर कुछ कहे सुने धोखे से उनकी कनीज को अपने साथ ले आया, और फिर जवाबी तौर पे शहजादी ने किस तरह शहजादे की चुनौती को कबूल करके शहजादे से अपना बदला ले लिया। रुस्तम देश के बादशाह ने यह सब सुन के शहजादे से कहा, रुस्तम, तुमने बड़ी गलती की शहजादी से अपनी पहचान छुपाकर उसके महल में रहे। उससे मोहब्बत करके भी तुमने उसके एतमाद को धोखा दिया। मोहब्बत में धोखा नहीं दिया जाता, ये बादशाहों का शेवा नहीं। अब तुम शहजादी से जाकर माफ़ी मांगो। शहजादा पहले ही अपने किए पे शर्मिंदा था। उसने बाप से कहा, अब्बा जान, मैं खुद उनसे जाकर माफ़ी मांगूंगा। अगली सुबह शहजादा अपने भरोसेमंद सिपाहियों और वजीर खास के साथ बादशाह बहराम की रियासत के लिए रवाना हुआ। शहजादा सारे रास्ते दिल ही दिल में यही सोचता रहा, मापारा मुझे माफ़ कर देगी। रियासत के करीब पहुंचने पे बादशाह बहराम के लोगों को खबर हो चुकी थी। ये खबर शहजादी मापारा तक भी पहुंच चुकी थी कि शहजादा रुस्तम आ गया है। रियासत में दाखिल होने से पहले ही शहजादे ने देखा कि शहजादी अपने घोड़े पर सवार चली आ रही है और एक गुलाम शहजादी के आगे घोड़े पे बैठा हुआ है। शहजादे का तो शाही खून जैसे जोश मारने लगा। वो एक झटके से घोड़े से उतरा और चिल्लाया, मापारा, ये क्या बेहूदगी है? मैं तुम्हारे लिए रिश्ता लेकर आया हूँ और तुम बेशर्मी से एक गुलाम के साथ एक ही घोड़े पे सवार हो। शहजादी बड़े इत्मीनान से घोड़े से उतरी और शहजादे के सामने उसकी आंखों में आंखें डालकर खड़ी हो गई और बड़ी अदा से बोली, तो आपको बुरा लगा? शहजादा बोला, हाँ बिल्कुल, मुझे बुरा लगा। ये तो मेरी तौहीन है। मापारा के होठों पे तंजिया मुस्कुराहट आ गई। उसने गुलाम को अपने नज़दीक बुलाया और शहजादे से कहा, जानते हो ये गुलाम कौन है? ये तुम्हारी वही कलूटी है जिसके बालों के तुम दीवाने थे। शहजादे ने बगौर देखा, वो गुलाम कलूटी ही थी। शहजादा शर्मिंदा हो गया। मुझे माफ़ कर दो मापारा, मैं अपनी हद भूल गया था। मैं पहले ही दिन से तुम्हारी मोहब्बत में गिरफ्तार हो गया था, लेकिन तुम्हारी आखिरी दिनों की बेइतनाई ने मुझे तोड़ दिया था। शहजादी बोली, मैं इस रिश्ते के लिए अपने बाबा जान की रजामंदी जरूरी समझती हूँ। अब वही तय करेंगे कि मेरा रिश्ता तुमसे होगा या नहीं। शहजादे और उसके साथ आए हुए लोगों को बादशाह बहराम ने बड़ी इज्जत से अपने महल में ठहराया। शहजादा रुस्तम शहजादी मापारा के रवैयों और उसकी बातों से अंदाजा लगा चुका था। शहजादी समझदार भी है और बहादुर भी। उसमें वो सारे गुण ढंग हैं कि वो किसी रियासत को बेहतर तौर से संभाल सके। उसमें शहंशाहियत का गुरूर भी है जो उसके मर्तबे के हिसाब से ज़ेब देता है। अभी शहजादा यही सब सोच रहा था कि शहजादी उसके पास आई। शहजादे से नर्म लहजे में कहा, गलती किसी से भी हो सकती है,
لیکن اپنی غلطی کو مان لینے میں کوئی شرم کی بات نہیں۔ حوصلہ مند ہوتے ہیں وہ لوگ جو اپنی غلطی کو مان لیتے ہیں، اور اسی میں بڑائی ہے۔ کسی بھی رشتے کی بنیاد اعتماد اور بھروسے پہ ہوتی ہے۔ شہزادی شہزادے کے ساتھ بادشاہ کے پاس آئی۔ بادشاہ بہرام نے کہا، مجھے اپنی بیٹی پہ فخر ہے، اس نے ہمیشہ میرا سر اونچا رکھا۔ شہزادہ بولا، بادشاہ سلامت، اب میں مکمل بدل چکا ہوں، میری سوچ بدل گئی ہے۔ اب میں کسی بھی انسان کو اس کے ظاہر سے نہیں بلکہ اس میں چھپے اندر کے انسان سے اس کا جائزہ لوں گا۔ اب میں جان چکا ہوں کہ ظاہری خوبصورتی کوئی معنی نہیں رکھتی، بلکہ اصل خوبصورتی انسان کے دل و دماغ میں اس کے کردار میں ہوتی ہے۔ اور پھر بادشاہ نے شہزادی مہاپارا اور شہزادے رستم کی شادی کا اعلان کر دیا۔ ملک بھر میں جشن منایا گیا۔ شادی کے کئی سال گزرنے کے بعد آج بھی شہزادہ رستم شہزادی مہاپارا سے کہتا ہے، تم میرا فخر ہو، میری شان ہو۔ اور جواب میں شہزادی اسے پیار سے دیکھتے ہوئے مسکرا دیتی ہے۔